new chapter of class 9 which belongs to the chemistry. Is matter around us pure? We have learned in the previous chapter all about the matter. What is their properties? What are the matters? Different kinds of matters. Now we will see rest of the part of matter. Is it all around, which is all around us? What kind of it? Is it pure or is a mixture? What kind of mixture? So all these aspects we will discuss in today's video. Now, when we see ghee, milk, butter, salt, so one question always arises in our mind: is it a pure substance? So we are saying no, yes, it is pure because we are getting the milk from directly from the cow and it's pure. But when we talk about as a scientist, then although it is not adulterated, means इसमें कुछ मिला नहीं है. No adulteration is there. कोई adulteration नहीं है. But actually what it is, milk is actually a mixture of water, fats, proteins. It means so many big molecules are there which are mixed in the milk and make it a mixture. As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixture of two or more pure substances. हम जब चारों तरफ अपने देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको दिखती हैं और ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं कि they are in the form of a mixture. So what is a mixture? Mixture are constituted by that one kind of pure form of matter. Mixture क्या होता है कि वो one or more, एक या उससे ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उससे मिलकर बना होता है. और अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. अब उस जो सब्सटेंस उसके अंदर होते हैं उनको हम किसी दूसरी चीज में नहीं बदल सकते, किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट जरूर कर सकते हैं. वी नो दैट dissolved sodium chloride can be separated from water by the evaporation. Known as a physical process is evaporation. So if some salt is mixed in water, so what will it become? It will become a homogeneous solution of salt and water, or that homogeneous solution we can call it homogeneous mixture of salt and water, and we can separate salt from it by evaporating it. So, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into chemical constituent. अब हम अगर सोचें कि इस मिक्सचर में से हम सोडियम क्लोराइड जो है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सोडियम और क्लोरीन जिससे मिलकर वो बना है उनको हम अलग कर देंगे तो वो हम नहीं कर पाएंगे. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter, क्योंकि उसमें एक ही तरह का मैटर है, and its composition is the same throughout, और इसका composition पूरे में एक सा रहता है. Soft drink and soil are not single substance. अब soft drinks जितनी हैं वो single substance नहीं है. Whatever the source of a substance may be, it will always have the same characteristic properties. अब चाहे वो कोई भी substance हो, इसकी हमेशा एक सी properties होती हैं. Therefore, we can say that the mixture contains more than one substance. इसलिए हम कह सकते हैं कि mixture में एक या उससे ज्यादा substances होते हैं. अब आता है types of mixture. Depending upon the nature of the components that form a mixture, we can have different types of mixture. अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उससे ये डिसाइड होगा कि वो किस तरह का मिक्सचर है. अब हम एक एक्टिविटी देख सकते हैं. Let us divide the class into groups A, B, C and D. हमारे क्लास में suppose 40 children are there, तो हमने 4 ग्रुप बना लिए. Group A takes a beaker containing 50 ml of water and one spatula. ग्रुप ए के पास 50 ml वाटर है और एक स्पैटुला है फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर जिसमें कॉपर सल्फेट पाउडर पड़ा है. ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट. ग्रुप बी ने क्या किया, 50 ml ही वाटर है, वाटर का कंटेंट उतना ही है, उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दिया गया, 2 स्पैटुला फुल. C and D can take different amounts of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given components to form a mixture. अब उसमें C और D में क्या किया, डिफरेंट अमाउंट का कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया और कॉमन सॉल्ट किसी को भी ले लिया. अब रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर. अब हम क्या देखते हैं, ग्रुप एंड बी हैव obtained a mixture which has a uniform composition. अब ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्या था कि हमने कॉपर सल्फेट डाला था, उसका एक सा कंपोजिशन है. Such mixtures are called homogeneous mixture. Some other examples of such mixtures are salt in water and sugar in water. अब जब कोई चीज किसी में डिसॉल्व हो जाती है तो वो होमोजीनियसली डिसॉल्व होती है, मिल जाता है.
तो उसको कहते हैं होमोजीनियस। अब ग्रुप सी और डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर्स व्हिच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब जो हमने सी और डी लिया उसमें हमने अलग अलग पार्ट्स डाले थे और उनका अलग अलग कंपोजिशन था। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड heterogeneous mixture. Mixture of sodium chloride and iron fillings. अगर हम सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग को डालते हैं, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर, तो इनसे क्या कैसा मिक्सचर बनेगा? हीट्रोजीनियस, कि जो हमको अलग अलग दिखेगा। सॉल्ट और आयरन फिलिंग डालेंगे तो आयरन फिलिंग ग्रे कलर के अलग दिखेंगे और सॉल्ट व्हाइट कलर का अलग दिखेगा, दिखेगा भी अलग और होंगे भी अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस, तो वो हो गया हीट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। नाउ one more activity we will discuss here. Let us again divide the class into 4 groups A, B, C, D. Distribute the following samples to each group. हर एक को एक एक दे दिया। Few crystals of copper sulfate to group A. 1 spatula of copper sulfate to group B. Chalk powder or wheat flour to the group C. Few drops of milk और इंक टू ग्रुप डी। इस तरह से हमने चारों ग्रुप को अलग अलग चीज दे दी। अब ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड डिस्टर। हर एक ने अपनी अपनी चीज को वाटर में डाला और चला दिया। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर इज विजिबल? डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। अब हम टॉर्च की बीम से देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन apparatus इन द मीन टाइम। उस समय फिल्ट्रेशन apparatus लगा दिया, एक फिल्टर पेपर ले लिया और एक फनल ले ली, उसमें उसको लगाकर उस तरह से उसको पास किया। अब लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब था तो नीचे कुछ बैठ गया उसमें। फिल्टर द मिक्सचर, डिस्कस द रिजल्ट। ग्रुप ए एंड बी सी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। ए और बी में हमने चूंकि कॉपर सल्फेट डाला था तो वो उनमें क्या हुआ? एक सा सॉल्यूशन होमोजीनियस बन गया। सी हैज गॉट अ सस्पेंशन। अब चॉक चूंकि सॉल्युबल नहीं है वाटर में तो उसका एक सस्पेंशन बन गया। अब क्या है सस्पेंशन, ही हम आगे बताएंगे आपको। एंड डी में क्या हुआ? हैज गॉट अ कोलोइडल सॉल्यूशन। उसमें मिल्क और इंक डाली थी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। अब इसका कोलोइडल सॉल्यूशन ये भी क्या होता है ये हम आपको अभी आगे बताते हैं। सो नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। अब ये तो हमने देख लिया इसके बारे में। अब कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। नाउ वी शुड सी व्हाट इज सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जैसे चीनी और पानी एकदम से घुल के एक सा हो जाता है तो सॉल्यूशन बन जाता है, वो होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस, एक सा मिक्सचर होगा, उसको हम कहेंगे जैसे लेमोनेड है। लेमोनेड, this is again a mixture, but we can also have solid solutions and gaseous solution. ये तो हम लोग लिक्विड की बात कर रहे हैं, पर सॉलिड भी मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं। इसी तरह से गैसेस भी मिलकर एक मिक्सचर बनाती हैं। सॉलिड्स का एग्जाम्पल है एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? जब दो कोई मेटल्स मिलकर एक नई चीज बना देती है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है जिनसे वो बनी है, उसे कहते हैं एलॉयज। अब हाउ यू विल डिफाइन इट? Alloys are homogeneous mixture of metals and cannot be separated into their components by physical methods. Means हम alloys को अलग अलग नहीं कर सकते। alloys ऐसे मिक्सचर होते हैं और उनमें सॉलिड स्टेट में होते हैं, उनमें हम मिला के कोई दो मेटल्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है ब्रास का। ब्रास इज अ एलॉय। आपने ब्रास के बहुत सारे आइटम्स देखे होंगे मार्केट में सेल होते हैं, तो उसमें करीब 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। तो इस तरह से ये एलॉय बन गया। Now we will come to the next thing which we should discuss here, I want to discuss here, that is nothing but saturated solution. When no more solute, हम किसी चीज में सॉल्यूट डालते जाते हैं, लाइक अगर हम चीनी के पानी में ही चीनी डालते जाएं तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसमें और चीनी नहीं घुलेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस टेम्परेचर पर वो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। So saturated solution is that when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution. So I hope you have understood. और अगर घुलती चली जाती है तो वो unsaturated हुआ। So this way we have learned. अब saturated solution तो ये हो गया। अब concentration of solution हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी चीज में कितना क्या है, उसके लिए हम देखते हैं amount of solute हमने कितना डाला है और
अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है उससे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो दिस विल बी द परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो we will start with the colloidal solution and we will learn about the suspension and all. So till that you should learn all these things and you can see the worksheet also. Okay.